Hi guys, this is Yusra. Welcome back to my channel. Today we're making a vlog of an iftar that we are having at our house. I've just washed my hair and just tied them because I have some cooking to do, some things to do. But first, let's do some skincare. I'm using this Cherry Dub by Fenty Skin and I'm just putting it on my face. It is a AHA BHA scrub. What is it? It's a AHA BHA like exfoliating thing, not a scrub, like not a physical exfoliant, but like a chemical one. It does sting when you put it on, but nothing unbearable. I'm just going to put it all over my face. If you notice, I'm not putting any on my upper lip because my upper lip just tends to sting a lot. Okay, leaving it on for 10 to 15 minutes and let's go about our day. So if you see, I have a dupatta on my head, not on my head, but I'm going to put it on my head is because my hair is falling so much. I don't want any hair in the food. So I'm just going to put a dupatta on and this is how I will look like the rest of the vlog until like the guests come over and all of that. This is also a special vlog because this is now one of our last event that we're going to be hosting at this house. If you see there are moving boxes up there, we're actually moving. We are moving to another house. um and I'm very emotional about it because I really like this house. So we're going to record this so that I remember it and you guys can see it. So first we just cut the fruit for the fruit chart and Azhar was getting that ready. I also made some bun kebab. A lot of the food I had prepped last night, but this is bengan ka raita. I have to just put tadka on it. And then this is avocado and green chutney, and I will be using that to make the rainbow sandwiches. And the egg is getting boiled as well for the rainbow sandwiches to go in. So just pouring some boiling water, just want to get the perfectly runny eggs. This is the rainbow sandwich. I have a lot of nostalgia with this. My popo used to make these for iftar as a snack, and I always have this at my table. It's such a nostalgic thing for me. Next, we were making some soy honey wings, and then I had set up a roll station. So this is seek kebab with some pickled onions और उसके साथ लच्छा पराठा, and Azhar is marinating the fish. रोल सारे बन गए थे. अब टाइम जो है सिर्फ 1 घंटा बचा था, तैयार भी होना था. दिस इज़ ऑल द फूड. दैट्स द बैंगन रायता विद द तड़का. दिस इज़ baba ganoush, which is a Mediterranean dip. Then we have falafel and sambusik, which is like samosa or falafel. Then we have the wings, and then we have the sandwiches. By the way, अगर आप damp towel रखें ना sandwiches पे तो वो dry out नहीं होते और soft रहते हैं. And then the fruit chart. My mask was almost done. This is the Medicube brightening mask. I was just going to take this out and my hair was wet. तो सबसे पहले तो मैंने अपने बाल थोड़े 90% ड्राई किए विद माय डाइसन, ताकि थोड़े ड्राई हो जाएं तो स्टाइल करना आसान हो. मेरे बाल इतने गिर रहे हैं और इतने हल्के हो गए हैं. आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू. सिडनी वाटर इज़ सो बैड फॉर योर हेयर कि समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरीके से, क्योंकि हार्ड वाटर है तो ये समझ नहीं आता कि किस तरीके से इनको मैनेज करूँ. Then I was just using my Dyson to smooth out the hair a bit with the smoothing brush. And I wanted कि बस मेरे बाल एक गो में सीधे हो जाएं और सीधे ही रहें. Alhamdulillah, throughout the event they were quite straight. Next I was just doing my brows. This is a brow gel by Emco Beauty. मैं कुछ नहीं, बस सिंपल सा थोड़ा सा स्मोकी ब्राउन लुक करती सी. व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट माय हेयर, हर जगह बाल होते हैं. इवन मुझे दुपट्टा पहन के खाना बनाना पड़ा कि किसी के खाने में बाल ना चला जाए. नेक्स्ट आई एम जस्ट ट्विस्टिंग माई हेयर अप अ लिटिल बिट एंड जस्ट डूइंग दोज ट्विस्ट बिकॉज टाइम इस वक्त बहुत कम था. मैं जैसे ही आई गॉट ड्रेस्ड, माई फ्रेंड्स एक्चुअली केम ओवर फॉर इफ्तार. सो पहले मेहमान हमारे आ चुके थे. उस वक्त तक तो बस मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी. द हेयर वॉज जस्ट अ सिंपल ट्विस्ट. हेयर गॉट डन एंड देन वी वेंट ऑन टू डू द मेकअप. अब मेकअप में भी मैंने आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल ही सिंपल सा मेकअप लुक है. दैट इज़ जस्ट यू नो कि हम लोगों ने जो है वो पहले ब्राउज करनी है विद डार्क ब्राउन शेडो. ब्राउज को थोड़ा सा डिफाइन कर देना है. बाय द वे आई स्टॉप डूइंग माई ब्राउज विद द थ्रेड. आई जस्ट लाइक यूज़ द फेस razor
और उससे मैं अपने ब्राउज को थोड़ा शेप कर लेती हूँ। आई फील लाइक दैट वर्क्स ओके फॉर मी। अब मैं थ्रेड वगैरह से बिल्कुल नहीं करती। आफ्टर दैट मैंने एक मैट वाइट शेडो लगाया ताकि ब्राउ को थोड़ा कार्व आउट कर लूँ। And then next what I did was I took a transition shade which was a darker brown shade in this palette, like medium tone brown. उसको crease पे लगाया, थोड़ा सा crease से ऊपर उसको spread किया, windshield wiper motions में blend किया. Then I took the darkest shade in this palette which was the dark brown shade, और फिर उसको पूरा लिड पे लगाया और उसी के साथ जो है ना ऊपर ब्लेंड करते हुए थोड़ी ट्रांजिशन कर दी. There were some holes in my shadow, बट ऑब्वियसली ये मेकअप लुक नहीं हो रहा, बहुत जल्दी जल्दी में तैयार होना था, तो जो होल्स थे वो मैंने ऊपर से थोड़े जितने फिल कर सकती थी कर दिए, और जो नहीं कर सकती थी आई जस्ट लेट इट गो. आई जस्ट वांटेड टू लुक अ बिट पुट टुगेदर एंड आई वांटेड इट टू लुक एफर्टलेस. तो ये किया मैंने. अज़र जो है वो पीछे अपनी तैयारियां कर रहे थे, चीज़ें अपनी सेट कर रहे थे, एंड आई वाज जस्ट क्विकली डूइंग माय मेकअप. थोड़े से फ्लफ़ी ब्रश से सब कुछ ब्लेंड कर दिया एंड ट्राई टू ब्लेंड द लिड color with the crease color, and then I took a fluffy brush और फिर कुछ harsh edges को थोड़ा वो कर दिया, diffuse कर दिया. Next I just put a lot of mascara on ताकि थोड़ी ऐसे लगे कि I am dressed up, and that's it. उसके बाद मैंने pot concealer लिया अपना NARS का. I just concealed whatever needed to be concealed. एंड उसके बाद मैंने लगाया फाउंडेशन. वो भी मैंने बहुत कम लगाया, जस्ट लाइक 1 pump ऑफ फाउंडेशन ऑल ओवर द फेस एंड नेक, विच वाज द मुसर्रत मिसबा फ्लॉलेस फाउंडेशन. आई डोंट नो उसका नाम क्या है पूरा. मुसर्रत मिसबा फाउंडेशन. आई एब्सोल्युटली लव इट. पाकिस्तान लास्ट टाइम मैं गई थी तो मैं लेके आई, और जब भी अब मेरा जाना होता है पाकिस्तान तो आई ट्राई टू गेट अ फाउंडेशन बिकॉज आई फील लाइक वहाँ के कलर सूट मी वेल. देन दिस इज़ द डालबा फर्स्ट सीरम स्प्रे, जो कि मैंने जल्दी से अपने मुंह पे लगाया बिकॉज आई वांटेड माय स्किन टू लुक लाइक स्किन एंड नॉट लुक केकी. ओवर टाइम जो है ना ये आपकी स्किन को, मतलब शुरू में मुझे लगता था कि थोड़ा ऑयली कर देता है, लेकिन ओवर टाइम ये आपकी स्किन को एक्चुअली काफ़ी स्किन लाइक फिनिश देता है. सो दैट्स व्हाट आई रियली लाइक. तो अच्छा सॉरी, मैंने पहले डालबा लगाया फिर फाउंडेशन लगाया है, और उस पर भी मैंने ब्यूटी ब्लेंडर पे डालबा थोड़ा सा डैप किया है और फिर लगाया है. सो टाइम बहुत कम था रियली. आई लुक काम ओवर हियर बट आई वाज रियली फ्रीकिंग आउट, और जल्दी जल्दी से अपना फाउंडेशन लगाया है. बाय द वे मेन्यू हमने काफ़ी रिच रखा. देवर अराउंड आई गेस लाइक 15-16 थिंग्स इन द मेन्यू अल्हम्दुलिल्लाह ऑल टुगेदर. लेकिन मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं जो है ना ऐसे खाने बनाया करूँगी. बट चलें, ये भी एक एक्सपीरियंस है. अब आदत हो गई है तो बस बन जाता है, लेकिन थकन बहुत हो जाती है. लाइक व्हाइल आई एम डूइंग दिस वॉइस ओवर, लिटरली माई फीट आर हर्टिंग, माई लेग्स आर हर्टिंग, एवरीथिंग इज़ हर्टिंग. बट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया. अच्छा रहा इवेंट. ज़्यादा इवेंट की मैं ऑब्वियसली पिक्चर्स वीडियोस कुछ नहीं ले सकी. दैट वाज ओनली बिकॉज आई वाज बिज़ी होस्टिंग, और मुश्किल हो जाता है, आप या तो होस्ट करें या फिर पिक्चर्स वगैरह लॉक कर लें, सब कुछ नहीं होता. माई फ़ोन वाज स्लाइडिंग. फिर जल्दी से मैंने कॉन्टोर किया है फ्रॉम माई एमको ब्यूटी लिक्विड कॉन्टोर, एंड देन उसके बाद उसको ब्लेंड आउट किया, एंड दिस जस्ट डिफाइन माई फेस लिटिल बिट. ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, मुझे ना अभी देख के रोना आ रहा है. मेरे बाल इतना गिर रहे हैं, इतना गिर रहे हैं. आई फील लाइक आई विल हैव नो हेयर लेफ्ट ऑन माई हेड. इफ़ यू गाइज हैव एनी रेमेडीज़ टू डू, आई थिंक ये हार्ड वाटर की वजह से गिर रहे हैं, लेकिन कोई अगर आपके पास रेमेडीज़ हैं तो ज़रूर बताइएगा. ओवरऑल मेरी वॉल्यूम में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कमी नहीं है. ऑब्वियसली कमी तो है, बट इतनी कमी नहीं है जितने गिर रहे हैं बाल. आज घर जब साफ़ कर रहे थे ना तो मुझे हर जगह से अपने बाल मिल रहे थे, एंड आई वॉज जस्ट लाइक सो अपसेट. आई वॉन्टेड टू क्राई. आई डोंट नो व्हाट टू डू. इतने बाल जो गिर रहे हैं, इट्स जस्ट नॉट नॉर्मल. एनीवे, जल्दी जल्दी कॉन्टोर करने के बाद आई वॉज गोइंग टू पुट ब्रॉन्ज़र ऑन इट ताकि इस कॉन्टोर को सेट किया जा सके. सो ये मेरा ब्रॉन्ज़र है फ्रॉम मेको कॉस्मेटिक्स, एंड आई एम जस्ट putting it on the nose, casual contour on the nose, on the cheeks, and obviously on the chin, and then across the forehead. ये करना है, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे which is going to be blush. जस्ट होस्टिंग ओवर हियर, मुझे लगता है कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा काम होता है. इट्स नॉट ईजी एंड ऑल, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा इफ़्तार और ये इफ़्तार पे जाके और इफ़्तार होस्ट करके एटलीस्ट आपको थोड़ा सा रमज़ान वाली फ़ील आती है. अदरवाइज़ लाइक
it's still like a normal work day, normal work routine for everyone. काफ़ी सारे जो दफ्तर होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली प्रैक्टिसिंग तो नहीं है रमज़ान का कल्चर में, तो फिर मुस्लिम मेजॉरिटी ऑफिस है, तो फिर थोड़ा फील होता है. सो आई गेस थिंग्स लाइक दीज मेक अस फील like we're at home. And I'm lucky that I have a lot of family around here. तो मुझे इतना फिर भी फील नहीं होता जितना और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों को होता होगा. So I'm just setting my face and selectively setting it where needed. I'm sorry if you can hear Azhar sneezing. He gets like allergies and stuff all the time and keeps sneezing. Next I'm using Katrina Kaif's blush. It is by her brand K. I don't know what shade it is. It's quite potent, quite dark. तो इसको अच्छा खासा मैंने लगाया for the fresh look, and then I put some beauty blender with the foundation on to blend everything together, and I think it looked quite coherent after that. और पता नहीं कुछ मेरे ख्याल से अज़र ने ना एट दिस पॉइंट निहारी हमने उस पर रखी हुई थी, चूल्हे पे रखी हुई थी गर्म होने के लिए. आई हैड मेड निहारी एज़ वेल. तो चूल्हे पे रखी हुई थी गर्म होने के लिए, और वो शायद अज़र को लगा कि जल गई, और मैं इन माई हेड वो कुछ कह रहे थे पीछे, और मैं दिल में सोच रही थी कि अब क्या होगा. नेक्स्ट टाइम यूजिंग शार्लेट टिलबरी पिलो टॉक इन मीडियम and just putting it all over my lips, and then I am now wearing मेरी शादी पे मुझे मेरी मदर इन लॉ ने ये earrings दी थी, so I really like them, so I thought they went well with the dress. These are gold earrings, तो वो मैंने पहनी है. मैंने पहले ये नेकलेस पहना, बट देन आई टुक इट ऑफ क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा सा ओवर लग रहा है. सो आफ्टर वेयरिंग इट आई वाज लाइक नहीं, टेक इट ऑफ. And then I wore this green watch, green and gold. It was complementing all the jewelry. This is what my outfit looks like. Oops, camera गिरने लगा था. Anyway, this is what my outfit looks like. And I was just going to wear this dupatta over it just so that थोड़ा full कपड़े, मतलब full सलवार कमीज feel आए. By the time I came out, we had all the candles lit out. हम हमेशा घर में candles जलाते हैं. I feel like it just gives such a warm feeling to the house. And then अज़र ने seating arrangement भी कर ली थी. This is our lounge for everyone to sit, and then this is the dining table. यहाँ पे अज़र ने छोटे छोटे cards लगाए हुए थे so that we know what everything is, and mashallah so the table looks full. The sandwiches are there, bun kebab are there, chow mein is there, nihari, chicken handi, fried fish, dal. उसके बराबर में फ्राइड फ़िश और दाल के बराबर में चिकन विंग्स, बाबा गनूश, समोसे, फलाफल और 2 मीठे. एंड एट दिस स्टेज ऑब्वियसली गेस्ट खा चुके थे, एंड आई जस्ट गॉट अ मोमेंट जब सब बैठ के बात कर रहे थे और हंस रहे थे. गेस्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 रूम्स एट दिस स्टेज. It's officially night time. The day has finally ended, and alhamdulillah the iftar went very well. It is a bit emotional because we are saying goodbye to this house, and I'm a little emotional about it, to be honest. This is our last ever thing that we have held at this house ever. So obviously there are a lot of emotions running through me, but it went well. I hope you guys liked this vlog. If you did, give it a thumbs up, subscribe, and I'll see you guys on the next one.